Suduti Naman to all the students. This is Jyoti Elawat, Physical Education Teacher at Suduti Global Academy, Manpuri. Students, yesterday we discussed the topic is malaria, chapter 2 of Physical Education. And today we will discuss the topic is influenza. So now let's start. The topic is influenza. Influenza is a disease which spreads rapidly. A healthy person may be infected by this disease if she inhales the exhaled air of patient, or by her coughing, sneezing, and by the emission of waste substances through her nose or mouth. The viruses of this disease enter in a healthy person through her nose, mouth, or eyes. This disease is not limited to the family, but it is also spreads in whole village or city. इन्फ्लुएंज़ा एक ऐसा रोग है जो तेज़ी से फैलता है। यह रोग रोगी के द्वारा निकाले गए सांसों के द्वारा, श्वास के द्वारा, उसके खांसने, छींकने या मुंह, नाक के द्वारा निकाले गए पदार्थ से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण काल। The incubation period of this disease is 1 to 2 days and remains approximately up to 7 days. इस बीमारी का संक्रमण काल 1 से 2 दिन का होता है और लगभग 7 दिन तक यह बीमारी रहती है। सिम्टम्स, लक्षण। The person who is infected by the disease gets fever. He also feels headache, body pain, perspiration, and cold. His body temperatures varies from 104 to 105 approximately. The patient feels cold even if her body temperature increases. She feels too much pain in back region after sweating. The body temperature starts declining, and after that the patient feels weakness. She remains mentally disturbed. The condition of throat becomes sore and respiration through nose does not take place easily. Emission of water starts from nose. The patient starts sneezing and coughing. This disease infects the lungs and the trachea and finally leads the pneumonia. जिस व्यक्ति को यह रोग हो जाता है उसे फीवर महसूस होता है, मतलब बुखार महसूस होने लगता है। उसे सिर दर्द, शरीर दर्द, पसीने तथा ठंड भी महसूस करता है। शरीर का तापमान 104 डिग्री से 105 डिग्री तक हो जाता है। अधिक ज्वर, तेज़ बुखार होने पर भी ठंड अधिक लगती है। पीठ में अधिक दर्द महसूस होता है। पसीना आने के बाद शरीर का तापमान कम होने लगता है। उसके बाद रोगी को कमज़ोरी महसूस होने लगती है तथा वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है। उसका गला खराब हो जाता है तथा नाक के द्वारा ठीक प्रकार से वह सांस नहीं ले पाता है। नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। रोगी छींकने तथा खांसने लगता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, बचाव व रोकथाम। The patient should be kept away from healthy persons in a separate room. रोगी को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति से अलग कमरे में रखना चाहिए। Warm bed should be provided to the patient so that due to cold he could not fall prey to pneumonia. रोगी को गर्म बिस्तर देना चाहिए ताकि ठंड से उसको निमोनिया ना हो सके। The patient should clean her nose and throat with warm water, mixing of a pinch
of salt in lukewarm water is beneficial. She should be gargles with lukewarm water. रोगी को थोड़े गर्म पानी से नाक और गला साफ करना चाहिए और गर्म पानी में नमक मिलाकर उसे गॉगल्स करने चाहिए. बॉइल्ड वाटर शुड बी गिवन टू द पेशेंट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. रोगी को उबला हुआ पानी ही पीने के लिए देना चाहिए. द पेशेंट शुड बी गिवन लिक्विड डाइट. रोगी को पेय पदार्थ देना चाहिए, लिक्विड डाइट. स्टीम शुड बी इनहेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विच रिजल्ट इन ईजी रिस्पिरेशन. रोगी को समय समय पर हीटिंग वाष्प में श्वास लेना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होगी. द पेशेंट्स रूम टेम्परेचर शुड बी वार्म. रोगी का कमरे का तापमान गर्म रहना चाहिए. when the temperature of the patient becomes normal, she should take complete rest. जब रोगी का तापमान सामान्य हो जाए तो उसको पूर्ण विश्राम देना चाहिए. नेक्स्ट इज dysentery means पेचिश. Dysentery is a disease of intestines. Dehydration usually takes place in this disease. There are two types of dysentery. पेचिश आंतों का एक रोग होता है. पेचिश से ग्रस्त व्यक्ति को लूज मोशन मतलब पतले दस्त लग जाते हैं. शरीर में पानी की कमी जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है. ये दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट बैक्टीरियरी डाइजेंट्री, सेकंड एमोबिक डाइजेंट्री. बैक्टीरियरी डाइजेंट्री dysentery means bacillary patches. Usually sitting of houseflies on food substances leads to bacillary dysentery. In addition to this, it may be due to unsafe drinking water and improper sanitation. This disease also spreads rapidly in slums. मोस्टली ज़्यादातर खाद्य पदार्थों पर मक्खियाँ बैठने से इसका यह बढ़ता है. इसके अतिरिक्त गंदे पानी व उचित साफ सफाई न होने के कारण भी यह बीमारी हो जाती है. इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण काल. इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 1 to 7 days. इसका संक्रमण काल 1 से 7 दिन तक होता है. सिम्टम्स लक्षण. वॉमिटिंग इज कॉमन इन बैसिलरी डाइजेंट्री. लूज मोशन बिगिन विद ब्लड एंड पस. बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज अप टू सम एक्सटेंट. बॉडी पेन occurs. Eyes sunk inside. Skin and tongue becomes dry. The patient feels thirsty. The amount of water in body decreases. Blood pressure becomes low and body becomes weak rapidly. बैसिलरी पेचिस में हम क्या होता है, जी मिचलाता है, उसमें उल्टियाँ लग जाती है. लूज मोशन होते हैं जिससे रक्त और पस होता है. शरीर में दर्द व बुखार रहने लगता है. आंखें धंस जाती हैं. त्वचा व जीभ भी सूख जाती है. व्यक्ति को अधिक प्यास लगती है. शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है. ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. शरीर जल्दी ही कमज़ोर होने लगता है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रोकथाम व बचाव. वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड बी ईटन आफ्टर प्रॉपर वॉशिंग. सब्जियां व फल खाने से पहले अच्छे से धुलना चाहिए. सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी यूज्ड. साफ एवं स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए. हाउस फ्लाइज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम फूड स्टफ्स. मक्खियों को भोजन के ऊपर बैठने देना नहीं चाहिए. स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ हैंड्स. हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए. Amoebic dysentery may be due to the use of unsafe drinking water and contaminated food.
अमोबिक डिजेंट्री। यह भी गंदे पानी के प्रयोग व प्रदूषित भोजन से हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस डिजीज इज 3-4 वीक। इसका संक्रमण काल 3 से 4 हफ्तों तक होता है। सिम्टम्स, the patient has loose motions which vary from 3-5 times per day. At the time of loose motion, pain is usually felt. It may lead of diarrhea. Blood also comes out with watery loose motions. रोगी को 3 से 5 बार प्रतिदिन लूज मोशन होते हैं। दस्त के समय दर्द भी होता है। इससे डायरिया भी हो सकता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, बचाव व रोकथाम। ओरल डिहाइड्रेशन पाउडर शुड बी मिक्सड इन क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर। आफ्टर कूलिंग इट शुड बी गिवन टू द पेशेंट एट सम इंटरवल्स। ORS घोल, ये ओरल डिहाइड्रेशन पाउडर होता है। ये साफ व उबले पानी में मिलाकर रोगी को देना चाहिए। द पेशेंट्स वेस्ट शुड बी डम्प्ड इन द सॉइल। रोगी के द पेशेंट्स वेस्ट शुड बी डम्प्ड इन द सॉइल। रोगी के कपड़ों को कीटाणु रहित गर्म पानी में उबालकर साफ करना चाहिए। द क्लॉथ्स ऑफ पेशेंट शुड बी वॉश्ड इन बॉइल्ड वाटर। रोगी के कपड़ों को गर्म पानी में उबालकर साफ करना चाहिए। Hands should be clean with soap before taking meals and after nature's call. हाथों को साबुन से साफ करना चाहिए। जब भी कहीं से बाहर से आए तो हमारे हाथों को साफ करना चाहिए। कॉन्टैक्ट ए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर इमीडिएटली। तुरंत ही अच्छे डॉक्टर से हमें संपर्क करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज टुडेज डिस्कस द टॉपिक इज influenza and dysentery. So revise it at your home. Thank you so much.